आज की क्लास हम एरे टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप आपने लास्ट क्लासेस देखी होगी। नाउ इफ यू वांट टू लर्न एरे, व्हाट इज द बेसिक्स, यू शुड नो what is variable, what is data type, what are operators, control statements little bit. Then you should be aware of little bit of class object concept. Then you'll be in a better position to understand array. Now, quickly we'll see some theoretical part and then we'll directly jump to the questions. So this is the area where you will get most of the questions. Most of the questions in hiring test or maybe to test your logic. तो बहुत सारे questions आपको array में आएंगे. Now going further, next till 31st, I want you to spend every day some half an hour solving array-based questions. You take multiple questions. So next 15-20 days, every day try to get some set of questions and try to solve that. With that, you will get hands-on. तो ये आप हर दिन कर सकते हो, every day 30 minutes for next month as well, array-based questions, because बहुत ज़्यादा questions आपको यहाँ से पूछे जाएंगे. And there are a lot of techniques using which we can solve the different set of problems. So let's see, before we talk about array, what is an variable? Variable is simply a label to a container using which we can easily store and access the data. Now, what are the different types of variables? Primitive and non-primitive based on the content. So primitive and non-primitive. How many values we were storing? Primitive में कितना value store कर रहे थे आप? Single value, right? So if you are storing that, single value we were storing. And non-primitive, we could hold a reference, right? That is the two types of variables we know. Now, if I have to store some integers, if I have to store some primitive multiple values, so what is the option we have? I want to store multiple primitive values, let's say 10 integer values. तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो उतने सारे आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो. But if I say create 10,000 such values, I want to store such 10,000 values. तो आप उतने सारे वेरिएबल तो नहीं क्रिएट कर सकते. उससे क्या होगा? Right? So you understand the problem. So what is the problem currently we are facing? I want to store multiple values. क्या करना है? I want to store multiple values. So what is the option currently? Use variables to store multiple values using variables. So what is the problem? Single variable, we have to create that many number of variables. So क्या करना पड़ेगा आपको? You have to create many number of variables. अब इसमें दिक्कत क्या है? कर सकते हैं ना? What is the problem? क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें? Length of the code will increase. दूसरा, नॉट एफिशिएंट. अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर 10,000 वेरिएबल क्रिएट करना है, कितना सारा आपको लाइंस लिखना पड़ेगा? दैट इज नॉट एफिशिएंट एट ऑल. यू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर. अब मुझे बताओ, आप डेटा ऐसे 10,000 इसमें रख रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो रिट्रीवल ऑफ डेटा इज आल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज. Retrieval of data is going to be also challenged because वो data कैसे रहेगा? Scattered. It is not in a. Now think of, let's say there are multiple students sitting in multiple other classrooms. अगर सारे एक ही क्लास में बैठे हैं तो एक्सेस करना इजी है, राइट? If people are sitting in different classes, so what is going to happen? Retrieving that, talking to them, it is going to be difficult. So retrieval of data. क्या प्रॉब्लम है रिट्रीवल ऑफ डेटा में? इस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम जाएगा.
So these are the problem. We know that. Now, to solve this problem, there are n number of solutions. We know that. Last class में हमने problem solving कुछ देखा था. So what was the like? We will define the problem and we'll find the solutions. Now, for a given problem, there might be multiple solutions. There might be multiple solutions. Now, to store multiple values, currently we are using variables, but there are n number of other solutions. और भी बहुत ज्यादा solutions आपके पास. This is not the only one option. आपके पास अलग अलग options हैं. Right? Now, क्या चाहिए आपको? You want a what is the problem now? We are storing multiple values in multiple containers. क्या कर रहे हो आप अभी? Multiple containers में multiple locations पे आप value store कर रहे हो. Right? Now, what is happening? The problem is that creation of variable is one problem. फिर उसका data retrieve करना, उसकी value update करना, ये बहुत बड़ा challenge है. So, if we store multiple values in a single unit मतलब ऐसे बोल सकते हो कि आप not a single unit actually in a consecutive locations. अब हम वैल्यूज कैसे स्टोर करें? अभी देखो यहाँ पर भी वैल्यू उतना ही स्पेस लगेगा. थिंक ऑफ यू, आपको आप अलग अलग क्लासरूम में बैठो या एक जगह बैठो, आपको जितना स्पेस चाहिए उतना स्पेस तो आपको चाहिए होगा. फॉर अ सिंगल स्टूडेंट टू सिट, उसको जितना स्पेस चाहिए उतना तो चाहिए होगा. नाउ इंस्टेड ऑफ यू सिटिंग इन अ स्कैटर्ड मैनर, अगर आपको एक क्लास में बिठा दिया जाएगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? थोड़ा रिट्रीवल फास्ट होगा. दैट इज अ एफिशिएंट वे टू मैनेज डेटा. We can easily store, we can easily retrieve in a single container. Now think of that similar way. So we want a container. We want a container. In that we'll have small containers. You can think of. क्या है? हमें एक रैपर चाहिए, एक कंटेनर चाहिए. Now think of this way. Let's say Amazon से आपने कुछ 10-15 चीजें मंगाई. Now you will not be like getting one piece at all at a time. सारा कंबाइन करके आपको एक बॉक्स में मिलेगा. जैसे आप जेप्टो स्विगी से कुछ मंगाते हो. सो व्हाट हैपेंस? जो भी सामान है आपको क्या कैसे मिलता है? एक बैग में मिलता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ कंटेनर और अ रैपर. दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट. आपने बहुत सारी वस्तु मंगाई है, ऑब्जेक्ट्स मंगाए. नाउ वेयर दे आर पुट, जो वैल्यूज है, जो भी कंटेंट है, दैट इज इनसाइड वन कंटेनर. सो दैट इज आल्सो वन ऑब्जेक्ट. कैन वी से? अरे वो थैली ऑब्जेक्ट ही है ना. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू पुट टुगेदर मल्टीपल थिंग्स इन अ वन काइंड ऑफ अ रैपर ऑब्जेक्ट. ऐसे बोल सकते हैं, कंटेनर ऑब्जेक्ट. सो टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ. हाउ मेनी ऑफ यू आर like afraid of this term, data structure and algorithm? Data structure and algorithm. कितने लोग डरते हैं इससे? बहुत ज्यादा लोग डरते हैं इससे. But fundamentally, if you look at what are data structures and what are algorithms, perfect. Algorithm is a steps for what purpose? To perform certain operation, right? So data structure you can think of as a container, a structure. It is a structure or a container. It is a structure or a container. उसका use करके क्या कर सकते हैं आप? What we can do online? Are you there guys? Online we have Shravani. Okay. Yes, sir. Okay. So what we can do with the help of container? We can store multiple values using which we can store multiple values. कैसे? Multiple values in a organized manner. It is a structure or a container using which we can store multiple values in an organized manner. Structured तरीके से आप डेटा स्टोर करते हो. Now think of, जैसे आप मूवी जाते हो तो बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं. There are multiple objects you can say who are sitting in a structured manner.
देयर आर मल्टीपल सीट्स, हर एक सीट पे कोई ना जाके वहां पर बैठता है. सो दैट इज काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर, थिंक ऑफ एज अ थिएटर एज a container. It is a container, that is a structure. स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे ऑडिटोरियम जैसे हाइट बढ़ते बढ़ते जाता है ऐसे. सो देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन रियल लाइफ आल्सो एंड इन प्रोग्रामिंग आल्सो. जैसे हमारे पास घर पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेनर्स है टू स्टोर वाटर. ग्लास है, बॉटल है, बकेट्स है. सो व्हाट आर दीज डिफरेंट कंटेनर्स? तो व्हाई डोंट वी यूज सिंगल कंटेनर? इतने सारे कंटेनर की जरूरत क्यों पड़ती है? आपका रिक्वायरमेंट अलग होता है. फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट वी यूज डिफरेंट कंटेनर. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपके पास क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंटेनर्स फॉर डिफरेंट पर्पस. समझ में आ रहा है? व्हाई देयर आर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स? व्हाई देयर आर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं हम? एट रन टाइम वी वांट टू स्टोर सम डेटा. एट रन टाइम वी वांट टू स्टोर सम डेटा. जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पे हमें कुछ डेटा स्टोर करना है. डेटा स्टोर करना है ना. तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के कंटेनर चाहिए होंगे, अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होंगे. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. उसी में से आपने सुना होगा एरे इज वन डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक सुना होगा आपने, क्यू सुना होगा, लिंक लिस्ट सुना होगा, और भी बहुत सारे. ये कुछ नाम आपने तो सुने होंगे कॉलेज में एटलीस्ट. उसको कैसे इंप्लीमेंट किया पता नहीं, लेकिन नाम पता है, राइट? सो व्हाट आर दिस जो नाम मैंने कुछ लिखा है यहां पर? डेटा स्ट्रक्चर्स और कंटेनर्स. ये किस चीज के लिए यूज होता है? डेटा स्टोर करने के लिए इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर. अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्यों दिए हैं? आपको तकलीफ देने के लिए, मतलब एग्जाम में टेस्ट करने के लिए. व्हाई दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर गिवन? सो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट वी वांट? तो उसके हिसाब से हमारे पास अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ कैन वी यूज ओनली वन डेटा स्ट्रक्चर? जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम यूज करेंगे. बिकॉज एवरी डेटा स्ट्रक्चर, एवरी कंटेनर हैज देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज. एवरी कंटेनर हैज इट्स ओन सेट ऑफ properties. Now that is a container. Can I say that is also an object? अरे आपने जिप्टो से कुछ मंगाया, वो थैली देता है ना आपके साथ, वो इनोवेंट फ्रेंडली, वो पॉलिथीन हो गई, कुछ जो भी देता है, उसके अंदर आप जो चीजें डालते हो. सो दैट इज वन आल्सो ऑब्जेक्ट. सो दैट बैग, that we can call it as a container bag or container object, that is also one object. So we have one object, we have a container object that is used to contain other objects or other values बोल सकते हो. What I'm saying, we have one object, container object. What is that? Container objects. So can we call it as container objects? Right? अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या करते हैं? परफेक्ट. ऑब्जेक्ट्स, अगर आप चाहते हो कि कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, सो यूजुअली डेटा स्ट्रक्चर्स सो आर कंटेनर ऑब्जेक्ट्स. क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स आर कंटेनर ऑब्जेक्ट्स. कंटेनर ऑब्जेक्ट्स. ठीक. अब मुझे बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट बनने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? बोलो. परफेक्ट. अगर आपको कंटेनर चाहिए, यू वांट एन ऑब्जेक्ट, सो कंटेनर ऑब्जेक्ट चाहिए आपको. व्हाट यू वांट? You want a container object. Now, before we create an container object, what is needed? We need a class. तो अभी इसको थोड़ा सोचने का ट्राई करो. Now, जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, when you are separately learning, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर डेटा स्ट्रक्चर कोर्स का पार्ट है क्या?
Is data structure part of a course? Now tell me, is it a part of course? Data structure? हम बस क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स है। अब मुझे, जब आप डेटा स्ट्रक्चर सेपरेटली पढ़ते हो, मतलब क्या पढ़ते हो आप? डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो। So let's say using Java, you want to learn data structures. So what do you mean by data structure learning? You want to create a container object, but how that container object will look like? How that container object will look like, and what are the different functionalities that particular container object will support? तो आप क्या करते हो जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो? इसका मतलब है आप क्लासेस बनाते हो खुद के। क्या करते हो आप? क्लासेस बनाते हो खुद के। You create your own set of classes. Why you are creating your own set of classes? To represent a real world container object. अब मुझे बताओ, हमें क्लासेस फिर से डिफाइन करने की जरूरत है क्या? डेटा स्ट्रक्चर कंटेनर आपको बनाना है, उसके लिए क्लास फिर से डिफाइन करने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो काम ऑलरेडी हो चुका है और मैंने आपको हायरार्की दिया था। कौन सा हायरार्की? कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की that contains different set of classes, interfaces. That classes contains several members. So how container object will look like and how it will behave, वो लॉजिक ऑलरेडी लिखा है ना। हो तो आप पूरा स्क्रैच से आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है क्या? बिकॉज दैट इज ऑलरेडी रिटन। आपको पढ़ना क्या है फिर कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करना है और कौन सी फंक्शनलिटी आपको यूजफुल है, तो वही पढ़ना है हमें। अगर आप चाहते हो तो वही क्लास खुद की बना सकते हो, क्लासेस आपके सामने है। सो हम उसका पढ़ेंगे चीजें कि ये इंप्लीमेंट कैसे किया, हाउ दे हैव डिजाइन दिस पर्टिकुलर क्लास, ये चीजें हम पढ़ने वाले कलेक्शन फ्रेमवर्क में। बट इफ यू वांट टू मतलब अलग से करना है तो आप कर सकते हो, बिकॉज every class itself is contain lot of methods, lot of members, right? So cut short, so what is the data structure? It is a container और स्ट्रक्चर जिसका यूज करके हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में। एग्जांपल एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। एंड वी नो दैट डेटा स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट कंटेनर ऑब्जेक्ट्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जावा में हम? डेटा कंटेनर ऑब्जेक्ट चाहिए। व्हाट यू वांट? यू वांट अ कंटेनर, कंटेनर ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। सो उसके लिए क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास इंटरफेसेस। सो डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन किस तरीके से? यूजिंग आर डिजाइन फर्स्ट, आर डिजाइन फर्स्ट यूजिंग, क्या करते हो आप? क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा। ये समझ लो। डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन first using classes and interfaces in Java. ठीक। Now creating a design means, creating a design means क्या करते हो आप? अरे डिजाइन क्रिएट करना मतलब क्या? स्पेसिफाइंग हाउ द एक्चुअल कंटेनर ऑब्जेक्ट will look like and how it will function, how it will function। ये दो चीज आप दिखेगा कैसे और बिहेव कैसे करेगा, दिखेगा कैसे और बिहेव कैसे करेगा, ये दो चीज आप स्पेसिफाई करते हो। तो आपको क्या करना है? ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मुझे क्या करना है? क्या करना पड़ेगा? सो व्हेन वी वांट टू स्टोर द डेटा तो क्या करना पड़ेगा? क्रिएट द ऑब्जेक्ट इसका ऑफ द क्लास। समझे?
ये समझने का ट्राई करो। नेक्स्ट, व्हाट आर एल्गोरिथम्स? Operations or functions or methods or implementations that works on a data structure। तो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अब मुझे बताओ, आपके पास कंटेनर है तो क्या करोगे आप उस कंटेनर के साथ? डेटा ऐड करोगे, रिमूव करोगे, सर्च करोगे, तो कैसे करना है ये? सो दीज ऑपरेशंस आर नथिंग बट algorithm। So what is algorithm? Set of steps और instructions किस चीज के लिए? टू कंप्लीट एन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन आपको कंप्लीट करना है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर लिख रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप? यू आर क्रिएटिंग क्लासेस। एल्गोरिथम लिख रहे हो मतलब मेथड लिख रहे हो आप। क्या एग्जांपल हो सकता है आपका? कैन ऐड, रिमूव, सर्च, सॉर्ट, बहुत सारे मेथड्स आपके पास। एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम? एल्गोरिथम्स आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग मेथड्स। बहुत सिंपल है। अभी तक वी हैव सीन 4 थिंग्स कि मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो मेरे पास वेरिएबल्स है, बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। देन वी टॉक्ड अबाउट वी नीड अ कंटेनर ऑब्जेक्ट। वी नीड अ कंटेनर जिसका यूज करके हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए वी स्टार्टेड द डिस्कशन अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो डेटा स्ट्रक्चर, जैसे रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारे घर में कंटेनर्स होता है फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। ग्लास है, बॉटल है, बकेट है, टैंक है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमें अलग अलग डेटा कंटेनर चाहिए होता है रियल लाइफ में, वैसे ही हमें प्रोग्रामिंग में रन टाइम में जब डेटा स्टोर करना है तो मुझे अलग अलग टाइप के कंटेनर चाहिए होंगे फॉर डिफरेंट पर्पस। So for that purpose, we have data structure. So what is the data structure? It is just a structure or a container using which we can store the data in a structured manner or organized manner. तो data structure create करने से पहले, that is a container object. That data structure is a container object. So there are different types of data structures. Array है, stack, queue है, but container बनाने से पहले वो दिखेगा कैसे, उसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ये हमें सपोर्ट करना पड़ेगा पहले। That we need to support, right? तो वो करने के लिए हम क्लासेस, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन यूजिंग क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा। और डेटा जब भी स्टोर करना था आपको करना क्या है? तो वी नीड अ कंटेनर। तो कंटेनर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट आप बाकी सारी चीजें होल्ड कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस to execute the task. Now, these are nothing but operation that we perform on a particular data structure. चलो यहां तक तो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Now, what is an array? Yes. What is an array? Step क्या? Same type of? Hmm. So it is a one of the solution you are trying to understand. It is a one of the solution. So what is the solution? क्या हमने प्रॉब्लम पहले क्या लिखी है? प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑनलाइन? मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो अभी मैं एक एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा था, दैट वाज नॉट इफिशिएंट। तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड अ काइंड ऑफ अ कंटेनर जिसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज इजीली रखूं। सो कंटेनर इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। सो एरे इज ए, so it is a data structure. Now there are different types of data structures: linear, non-linear. So it is a linear data structure. It is a linear data structure जिसका यूज करके क्या कर सकते हो आप? इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज
multiple values of same type in a sequential memory locations. क्या दो वर्ड यूज हो रहा है? Sequential and same type. Now think of, you can think of a, let's say एक रो है मूवी थिएटर की, एक रो समझ सकते हो आप. There might be multiple things. तो एरे क्या है? कंटेनर है. एरे क्या है? कंटेनर है, स्ट्रक्चर है, यूजिंग विच वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. अब वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? सेम टाइप की. और वो कैसे स्टोर होगी? इन अ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये सेम टाइप का होना जरूरी है क्या? सेम टाइप का होना जरूरी है क्या? ठीक है, क्यों जरूरी है फिर? सेम टाइप का होना जरूरी है, ओके, बट क्यों जरूरी है? परफेक्ट. सो द डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर. सिक्वेंशियल मैनर ये मैंडेटरी है क्या? हाँ, वो सिक्वेंशियल मैनर में रहेगा. क्यों रहेगा? दैट ये दो कीवर्ड पे ध्यान रखो, सेम टाइप और सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस. अब मुझे बताओ, सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? तो एक्सेस करने के लिए दिक्कत हो सकती है, स्टोर करने के लिए भी. सो इट इज काइंड ऑफ अ वे using which we can easily store the data and we can easily access the data since the data is in sequential manner. अभी array is the best or not? अब ये कब बेस्ट है कब वर्स्ट है, we will see that. बट अभी के लिए समझो कि इट इज अ वन ऑफ द कंटेनर जिसका यूज करके आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो सिक्वेंशियल मैनर. ठीक. अब मुझे बताओ, लेट्स से I want to store 10 values, 10 integer values. How much memory I need? अरे 10 वैल्यू स्टोर करना है मुझे. हाँ, डेटा टाइप इंट है. देन कितना? 40 बाइट्स. सो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 4 बाइट चाहिए, ऐसे 10 वैल्यू तो 40 बाइट्स. तो इसमें कोई चेंज नहीं है, स्टिल वी विल नीड 40 बाइट्स. अगर आप एक एक लाइन पे भी स्टोर करोगे 4 बाइट्स 4 बाइट से 10 वैल्यूज, इवन दो यू आर गोइंग विद एरे, इसका मतलब है क्या कुछ मतलब चेंज होगा उसमें? it is going to take 40 bytes. It is going to take 40 bytes. Even though you are storing one by one or as part of an array, 40 bytes तो लगेगा ही. Yes or no? तो ये मतलब बहुत सारे गड़बड़ करते हैं कि इसको कभी कभी बोलते हैं कि इसको कम साइज लगता है, ज्यादा लगता है. So first of all, understand to store a single value, whatever the memory we need, that is not going to change. That is not going to change. एक सिंगल वैल्यू को 4 बाइट चाहिए, 10 को चाहिए मुझे 40 बाइट, वो वैसा ही रहेगा. सो जस्ट लेट्स कम बैक टू दिस. सो व्हाट इज एरे? इट इज अ कंटेनर जिसका यूज करके हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इन अ सिक्वेंशियल मैनर. इन अ सिक्वेंशियल मैनर. अब मुझे बताओ, जब आपको डेटा स्टोर करना है तो वहां पर दो सिचुएशंस है. आपको पता है कि कौन सा डेटा स्टोर करना है, एक्चुअल वैल्यूज, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपको नहीं पता है, यू डोंट नो व्हाट डेटा टू स्टोर, बट यू सिंपली नो कि हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू स्टोर, हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू स्टोर. अब मुझे बताओ, जैसे इट इज सिमिलर टू लाइक बुकिंग अ हॉल. जैसे आप हॉल बुक करने के लिए उनको बता दो कि हाउ मेनी सीट्स, राइट? उसमें कौन होगा, that is not decided. That is one thing. But sometime what we know that
we need 50 seats, and on each seat who is going to sit, that also we know. So whenever you are storing the values in array, तो आपके पास दो सिचुएशन याद रखना है कि आपको वैल्यू पता है क्या और एडवांस में या नहीं पता क्या. सो बेस्ड ऑन दैट, सो हाउ टू स्टोर वैल्यूज, how to store values, how to store. So what is an array? That we know that. What is an array? How to store values using an array. अब आपके पास ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अब आपके पास दो सिचुएशन है. कौन सी दो सिचुएशंस है? व्हाट टू सिचुएशंस वी हैव? values to be stored are known in advance. कौन सी वैल्यू स्टोर करना है वो आपको एडवांस में पता है. values to be stored are not known in advance. ये दो ही सिचुएशन है. एक तो वैल्यू पता होगा, कौन सी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है दैट वी नो. तो दोनों केस में आपका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा. जब आपको वैल्यूज पता है तो सिंटैक्स है सिंपल सा. सो यू हैव टू टाइप द डेटा टाइप. Square bracket. Now square bracket is a notation. It specifies that this is an array type of variable. It is not a normal variable. It is a array type of variable. Then we write array name followed by equal to curly braces and comma separated values of same type. Now let's see this. हाँ, वो कब करते हैं? Let's see this. So let's say I want to store 5 integer values. So I'm saying this is an array. So this is how I store multiple values. अब मुझे ये 5 वैल्यू स्टोर करना होता विदाउट यूजिंग एरे, तो मुझे क्या करना पड़ता? int वेरिएबल 1 इक्वल टू 100, int वेरिएबल 2 इक्वल टू एंड सो ऑन. तो ऐसे कुछ वैल्यूज आप करते. बट नाउ दिस इज लिटिल बेटर. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट सिंटैक्स. और दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है? व्हाट इज अदर ऑप्शन? अब वैल्यूज पता ही नहीं है तो उस केस में थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा. तो यहां पर वैल्यू नहीं पता है आपको, तो यहां पर आप यूज करते हो न्यू डेटा टाइप और यहां पर size. How many values you want to store? Now let's say I want to store 5 values. I will say new int 5. तो ये तो आपका, if I remove this square bracket, what will happen? एक normal primitive variable बनेगा. We cannot do that if I remove that. तो ये square bracket लिखना mandatory है. It is not optional, it is mandatory. That is a notation to say that this is not a normal variable, this is a array type of variable. We need to write this. ठीक, इसको समझने का ट्राई करो अभी. Now you tell me, आपको ऑलरेडी पता है, ये कोई एक्सप्लेन कर पाएगा मुझे? लेफ्ट राइट देखो एक बार. व्हाट इज इंट? ओके, सो व्हाट इज द इंट स्पेसिफाइज? इंट लिखने से क्या पता चलता है हमें? वैल्यूज है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है. कौन से टाइप की है? सारी इंटीजर. तो आपको ये देख के भी पता चल रहा होगा कि हम एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट दैट शुड बी ऑफ सेम टाइप. अगर अलग टाइप की होगी तो क्या होगा?
तो सबका अलग अलग डेटा टाइप डेटा टाइप स्पेसिफाई करना, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग अ नॉर्मल वेरिएबल, दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑफ क्रिएटिंग अ नॉर्मल वेरिएबल इटसेल्फ। तो यहां पर क्या पता चल रहा है इंट लिखने से? यस पुष्कर, मतलब सारी वैल्यूज कौन से टाइप की है? इंटीजर टाइप की है। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन व्हाट इट स्पेसिफाइज कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, इट इज एरे टाइप ऑफ वेरिएबल। व्हाट इज एरे? एरे क्या है? वो नाम है कुछ तो। वेरिएबल याद है सबको? तो वो एरे क्या है? तो व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर? Assign right hand side value to the left hand side. Perfect. So what is the use of assignment operator? Assign right hand side value to the left hand side variable. So left hand side must be a variable. So array, can I say it is a variable? तो कौन सा टाइप का वेरिएबल है? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव कब बोलोगे आप? अगर उसमें प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है तो आप तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना, प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इंट कौन सी टाइप की वैल्यू है? प्रिमिटिव। तो कैन आई से इट इज अ प्रिमिटिव वेरिएबल? इट इज नॉट अ प्रिमिटिव वेरिएबल। प्रिमिटिव का मतलब होता है सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। सो दिस इज अ वेरिएबल बट दैट इज नॉट अ प्रिमिटिव वेरिएबल, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल। व्हाट इज द काइंड ऑफ वेरिएबल? रेफरेंस वेरिएबल। नाउ यू टेल मी व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल? व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल? A variable which refers to an object. अ वेरिएबल Which refers to an object. which refers to an Object. object. Okay. A variable that stores the reference और एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये तो समझ में आ रहा है कि वो क्या होल्ड कर रहा है, क्या रेफर कर रहा है। इट इज गोइंग टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेरिएबल। व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल दोनों केस में? रेफरेंस। राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में क्या है? अरे राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है। राइट हैंड साइड में क्या है? ऑब्जेक्ट। राइट हैंड साइड में क्या है? ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड यूज किया, मतलब समझ में आना चाहिए था आपको अभी तक, राइट? सो एरे इज अ रेफरेंस वेरिएबल। एरे इज ए, इन दिस केस कोई भी नाम हो सकता है, नॉट नेसेसरी। एरे इज अ रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस है मतलब ए वेरिएबल है, इट इज ए वेरिएबल। अब इसके अंदर वैल्यू हो सकती है वाई वाई। नाउ व्हाट इज दिस वाई वाई? वाई वाई इज ए एड्रेस अब वैल्यूज क्या है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है आपकी। सो व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव? 10 20 30 40 50, ये वैल्यूज है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहां पर क्या है इस केस में? इसमें वैल्यूज पता है क्या? वैल्यूज पता है क्या? नो no. तो यहां पर वैल्यू स्टोर होगी क्या फिर? ऑब्जेक्ट कब बनता है? अरे ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नथिंग बट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब क्या करना? मेमोरी स्पेस एलोकेट करना। तो आपने 5 वेरिएबल बोला है, उसने बोला है कि क्रिएट अ एरे दैट कंटेन्स
5 वैल्यूज। तो यहां पर आपका स्टोर होगा समझे? समझे यहां तक? तो ध्यान रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन एलएचएस, व्हाट इज दिस? It's just a notation. It's just a notation to specify the variable is a type of array. That's it. ठीक? Now, this particular variable array, what is this? Reference variable, which refers to the object which contains the values. आपने जो लिखा न्यू int 5, what is this? What is this? Is an object. Is an object. What is 5? 5 is the size of an array. 5 is the size of an array. तो ध्यान रखना, जब भी आप एरे क्रिएट करते हो, यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। एरे क्रिएट करते हो मतलब क्या करते हो आप? ऑब्जेक्ट। सो एवरी एरे क्रिएशन is nothing but object creation. ठीक? Now look at this. What happened in this case? Can you explain me this? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कैसी है? ठीक है, लेकिन उसमें 0 0 जो है, व्हाट इज दैट? सो whenever array creator, whenever we create an array, whenever we create an array with the size specified, array elements will be initialized with default value. मतलब उसको डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा। समझे? अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज कैसे स्टोर हो रही है? हाउ आर दिस वैल्यू स्टोर्ड? सीक्वेंशियल, राइट? ये वैल्यू स्टोर हो रही है सीक्वेंशियल। ये भी वैल्यूज कैसे स्टोर हो रही है? सीक्वेंशियल। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर एक और वेरिएबल बनता है,
एक और वेरिएबल बनता है, हर एक एरे में एक वेरिएबल बनता है, ध्यान रखना ये, बहुत सारे लोग गड़बड़ करेंगे यहां पर। तो हर एक एरे जो रेफर करता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बनता है, उसका नाम है लेंथ। क्या है? एंड इट इज ए इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज ए ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल बनता है उसे कौन सा वेरिएबल बनते हैं, बोलने की जरूरत है क्या? So this is something, sorry, this is not zero. This is a instance variable. और इंस्टेंस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं? परफेक्ट, ध्यान रखना, व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज अ instance variable which is created inside this particular array object, and what it does, it stores the length of the array, length of the array which is created. ठीक, ये ध्यान रखना। यहां तक बेसिक्स क्लियर है? once that is done we are good to start with problems, थोड़ा टाइम रखो उसको। now there are certain restrictions, जो आपने साइज स्पेसिफाई करी है, राइट? ये साइज स्पेसिफाई करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, otherwise there are some issues. so array size restrictions, let's try to understand what are the restrictions. साइज स्पेसिफाई करना मेंशन जरूरी है क्या? साइज स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है क्या या ऑप्शनल है? परफेक्ट, सो इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। क्या मैंडेटरी है? टू स्पेसिफाई द, it is mandatory to specify the size of an array, otherwise you will get it is mandatory to specify the size of an array, otherwise you will get compile time error. जीरो से कर सकते हो क्या आप? यस, कर सकते हैं। so array size can be 0, उसके बाद नो कंपाइल टाइम एरर और नो रन टाइम एरर, कोई भी आपको एरर नहीं आएगा। जीरो हो सकता है आपका, दैट इज परफेक्टली फाइन, बट लिखना मैंडेटरी है। नेगेटिव में लिख सकते हो क्या? इफ एन एरे साइज इज नेगेटिव then there will be क्या? नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन एट रन टाइम एट, तो ये भी आपको लिखना मैंडेटरी है। नहीं लिखोगे तो कंपाइल टाइम एरर। जीरो लिख सकते हो क्या? हाँ, लिख सकते हो। नेगेटिव लिखा तो नेगेटिव में साइज नहीं हो सकता, सो अगर लिखते हो तो यू विल गेट रन टाइम एक्सेप्शन, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक, अब पॉजिटिव लिख सकते हो क्या? हाँ, दैट इज परफेक्टली फाइन। फ्लोट में नो। तो एरे साइज स्पेसिफाई करने के लिए आपके पास कुछ डेटा टाइप्स है। सो एरे साइज कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग बाइट, शॉर्ट, int, char, otherwise क्या क्या ऑप्शंस आपके पास? इतने ही ऑप्शंस हैं। फ्लोट, डबल, बुलियन नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, जीरो चलेगा। लिखना मैंडेटरी है क्या? यस। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस याद रखो, नहीं लिखोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। जीरो लिख सकते हो, नो इशू। नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। इसके अलावा पॉजिटिव वैल्यू में क्या लिख सकते हो आप? बाइट, शॉर्ट, एंड, कैर। फ्लोट, डबल में नहीं लिख सकते आप। लॉन्ग में भी नहीं लिख सकते। लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है, उतना वैल्यू का एरे क्रिएट करना मतलब आउट ऑफ मेमोरी जाओगे आप।
अगर किसी ने लॉन्ग में स्पेसिफाई किया बहुत बड़ी वैल्यू है, उतने सारे कंटेनर्स, उतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करना, तो यू देयर माइट बी अ चांस दैट यू विल गो आउट ऑफ मेमोरी, तो इसलिए लॉन्ग उन्होंने नहीं। हाँ, विल कम टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ array of characters behind the string करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? साइज के बारे में कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन ऑन दी साइज? ठीक है। नाउ देयर इज वन थिंग, theoretical part we will cover and then we will directly start with the examples. So what is length versus length? What is length versus length? लेंथ तो मैंने आपको ऑलरेडी, एक तो फंक्शन दिख रहा है, एक तो नॉर्मल वेरिएबल दिख रहा है. सो व्हाट इज लेंथ? इज एन इंस्टेंस वेरिएबल. कहां पर क्रिएटेड है? विच स्टोर्स द साइज ऑफ एन array, which is created inside the array. And what about this length? Is a method present in string class which returns the string length. We'll talk about this. तो ये ध्यान रखना, लेंथ मेथड हम स्ट्रिंग क्लास के पास देखेंगे. दैट इज अ मेथड एंड लेंथ नाम का एक वेरिएबल है. लेंथ नाम का एक वेरिएबल विच स्टोर्स द साइज ऑफ एन एरे which is created inside the array. ये समझो. Now if you remember toString method, do you remember toString method? Where is toString method present, Pushkar? Hmm? Yes, what is a toString method? ToString is a method which is present inside the object class. And what that prints? Akshay, what ToString method prints? पुष्कर, क्या प्रिंट करती है ToString Class method? पुष्कर ऑनलाइन है क्या? हाँ, तो वही पूछ रहा हूं मैं. ToString is a method present in object class. What that returns? That returns a string. What that string contains? Class name along with hexadecimal hash code, right? और ToString मेथड कैसे कॉल होती है, कब कॉल होती है? जब भी आप कोई रेफरेंस प्रिंट करते हो तो ऑटोमेटिकली ToString मेथड कॉल होती है. इफ यू नो दैट, राइट? सो ToString मेथड कहां पर प्रेजेंट है? ToString मेथड is present in object class which prints the which gets called implicitly whenever we try to print the reference. And what this does, it returns the class name along with package name and
hexadecimal hash code. ये तो आपको पता होगा। तो जब भी आप एरे का रेफरेंस प्रिंट करोगे तो व्हाट डू यू थिंक? So array reference print, printing an array reference will give hexadecimal hash code and not array elements. ये बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं। आई हैव सीन दिस। तो आपको लगता है कि एरे रेफरेंस प्रिंट कर दिया तो उसके अंदर का कंटेंट प्रिंट होगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। व्हाट इट इज गोइंग टू प्रिंट? परफेक्ट। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, देन वी आर गुड टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ठीक। नाउ अब आपको पता है कि एरे कैसे क्रिएट करना है, वैल्यूज कैसे स्टोर करना है, ये पता है आपको। अब आपको पता करना है कि जो वैल्यू स्टोर करिए बाद में उसे एक्सेस कैसे करेंगे। सो हाउ डू वी एक्सेस दैट? दिस इज वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस। सो हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम एन एरे? आपको ऑलरेडी पता है सिंटैक्स। इफ यू नो द सिंटैक्स यू ऑलरेडी नो हाफ ऑफ द आंसर। अब इसके अंदर वैल्यूज है, कहां पर है? ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है। अब ऑब्जेक्ट से वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेफरेंस वेरिएबल। सो हाउ डू वी रीच टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट? अरे रेफरेंस का यूज करके आप ऑब्जेक्ट तक पहुंचोगे। अब ऑब्जेक्ट में से मुझे पहली वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए, ये बोलना पड़ेगा बस रेफरेंस और फॉलोड बाय समथिंग मुझे बोलना पड़ेगा, गिव मी द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। तो वहां पर क्या है, बस सिक्वेंशियल वैल्यूज है ना, हाउ द वैल्यूज आर सिक्वेंशियल। तो यू वांट टू से दैट गिव मी दिस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, राइट? तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, नथिंग फैंसी। So you reach out, you go to the particular object and you go to the object, particular object using reference. Now using that reference, you simply say, give me that first value, second value and so on. So कैसा array values कैसे stored है? Array values are stored in a sequential memory location, sequential memory locations. तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट, जैसे आप कोई मूवी थिएटर जाते हो, आपको रो नंबर पता है, तो वहां पर लेट्स से A15, आपको पता है कि A15 कैसे होगा, 1 2 3 4 like this. So you will be able to reach out to this particular location easily if you know the first element, right? So array reference variable points to an object which contains array elements. Perfect. ठीक। तो एरे रेफरेंस स्टोर्स द, एरे रेफरेंस जो स्टोर करता है यहां पर जो वैल्यू है, लुक एट दिस। तो ये वाई वाई क्या है? सो दिस वाई वाई इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है आपके पास, दैट इज अ बेस एड्रेस, दैट इज अ बेस एड्रेस। सो एरे एलिमेंट एरे रेफरेंस किसका एड्रेस स्टोर करता है? स्टोर्स द बेस एड्रेस, बेस एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आपके पास, राइट? नाउ यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होती है, दैट इज इंडेक्स। सो व्हाट इज इंडेक्स? बोलो। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। नाउ सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट। अभी just to simply answer this, how far I am from myself? How many positions? 0.
So based on that, I have this reference that is pointing to this object और इसके अंदर values है. ऐसी कुछ values stored है आपकी. Now you have to simply answer how far the 10 is from 10. How many places? How far the 20 is from first element? 1 places. How far 30 is from first element? So this is nothing but your indexes. What are these? Indexes. So what is an index? Index is just a measure to specify how far the element is from base element or first element. Index क्या है? Index is a measure which specifies how far the element is, how many positions far the element is from first element. That is a simple. Index का range क्या होगा? 0 से लेके That's it. 5 एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितना इंडेक्स होगा आपका? 4. मिनिमम? परफेक्ट. तो ये इंडेक्स यूज करके हम एलिमेंट्स इजीली एक्सेस करेंगे. सो व्हाट इज एन इंडेक्स? इट इज एन measure. It is an measure of how far the element is from the first element. It is a measure of how far the element is from the first element. इसका रेंज क्या है? 0 to. So ध्यान रखना. So we can access array का कोई भी element using index. So we can access array elements एक सिंगल लाइन में elements using an index. तो क्या करना है आपको? तो जो भी array name रहेगा followed by index. ठीक. अब मेरे पास 10,000 एलिमेंट्स हैं. मेरे पास 10,000 एलिमेंट्स हैं एक एरे में. सो आर यू गोइंग टू एक्सेस वन बाय वन, वन बाय वन? आर यू गोइंग टू एक्सेस? आइटरेट करना यानी रीड करना, रिट्रीव करना. तो आपके पास सबसे पहला क्या है? वन बाय वन. सॉरी, क्या कर सकते हो आप? वन बाय वन. दूसरा, ट्रेडिशनल फॉर लूप. आपके पास इनहांस फॉर लूप भी है. सो विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, बट अभी के लिए समझो. क्लियर? So this is all about your array theory. Now we are good to start with the programs. Any questions on this? Now let's try to understand all this theory with this example. So if I want to store multiple values, so what is the first option? Create that many number of variables. But that is not the good option. तो इसलिए मेरे पास अभी ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है. देन आई कैन थिंक ऑफ होल्डिंग समथिंग यूजिंग द array. So what I'm going to do is I'm going to store multiple values that will be of type integer. So I will just call it as array. I know the values. So you can hold any number of values. You can store any number of values.
What is the output? 1 2 3 क्या रहेगा? 1 2 3, right? Okay. आदित्य, 1 2 3. Not 1 2 3. This will be hash code. अभी तो बताया मैंने क्यों हैश कोड टू स्टिक मेथड कॉल होता है. वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा वो, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दे इधर. अब मुझे वैल्यूज नहीं पता है, आई डोंट नो द वैल्यूज. तो मेरे पास न्यू इंट 3, यहां पर भी हैश कोड ही आएगा. देयर आल्सो हैश कोड. I want to access the values of array 1. How do I access? Before that, how many values are there? I want to access array 1 ka elements. Just call it as array 1. So I can simply say array 0, first element, and so on. So this is going to print me 1, 2, 3. One, two, three. Similarly, array 2 elements. So what it will be? 0, 0, and this will be also 0 0 आएगा. Now we know how to create an array, how to hold values, how to access that. Now is the यहां पर मैं array create करने का ट्राई कर रहा हूं, मुझे एरर आ रहा है. Why I am getting the error? साइज स्पेसिफाई नहीं किया. तो साइज स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है क्या? Yes, otherwise you will get compile timer. Can I say it as 0? क्या गड़बड़ हुआ? तो नोटेशन मैंडेटरी है. Now it is fine. That is also fine. Next, can I put this as -5? You'll get ये आपको मिला. If I run this, you'll get this exception. रन टाइम पे मिलेगा आपको. Getting this? You'll get compile timer. 0 लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हो. नेगेटिव नहीं लिख सकते, फ्लोट में नहीं लिख सकते. Right? This is about array size index, array size. Now there is something called as about the length. So each array you will find this
लेंथ. सो देयर इज अ लेंथ नाम का वेरिएबल है. सो व्हाट इज द वैल्यू यू सी दैट यू विल गेट 0. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 0. See here, we get value as 0 because there are no elements. Now the question is for Pushkar. Pushkar, are you there? चलो आंसर बताओ मुझे फिर. Yes. First line 10, 20, 30. And this line क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? What is the problem? So what is the index range? 0 to 2. 0, 1, 2. But आपने यहाँ पर 3 लिखा है. So what is this? This index is out of range, right? So you'll get an exception, array index out of bounds exception. So you'll get array index out of bound exception. So what is array index out of bound exception? So when do we get this exception? मतलब क्या करने का ट्राई करते हो तब आपको ये एक्सेप्शन आता है. If you try to access an element, if you try to access an element with an index which is not in the range. So index range क्या होता है? Index range 0 to length minus 0 to length minus 1. So ध्यान रखना ये. Now I want to create an array that holds multiple characters. We'll talk about this. This is also one more thing. This is called as anonymous array. What is an anonymous array? तो जैसे हमने एनोनिमस क्लास देखा था वैसे ही कुछ आप अभी के लिए याद रखो. विल आंसर दिस. ओके. सो आई हैव दिस पर्टिकुलर एरे. सो हाउ डू वी पुट दैट? एरे है तो आपको पता होगा कि मल्टीपल वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड. और कैरेक्टर कैसे लिखते हो आप? सिंगल कोट्स में. सो दिस हाउ वी क्रिएट एरे ऑफ कैरेक्टर. आई वांट टू प्रिंट ऑल ऑफ दिस. हाउ डू आई प्रिंट? Array of 0, 1,
2 3 4 4 चलेगा नहीं। वी फाइंड दिस। अब ये इसमें दिक्कत क्या है, अगर 10 कैरेक्टर तो 10 बार आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो कैन वी ऑप्टिमाइज दिस? सो हु कैन हेल्प मी? आदित्य, कैन यू हेल्प मी? अब क्या रिपीट कर रहे हो आप? चेंज क्या हो रहा है? बस इंडेक्स चेंज हो रहा है। सो कैन यू हेल्प मी राइट अ प्रोग्राम दैट विल आइटरेट द एलिमेंट्स ऑफ एन array यूजिंग लूप? तो कितने बार कितनी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हो आप? 4, यानी एरे लेंथ कितना है? एरे लेंथ भी 4 ही है ना। 4 टाइम्स यू आर प्रिंटिंग, जितना लेंथ होगा उतनी बार आप ये प्रिंट कर रहे हो। सॉरी, जितनी बार, जितने एलिमेंट्स है एरे में उतनी बार आप प्रिंट कर रहे हो। तो कैन यू टेल मी, आई नीड टू राइट अ लूप, कितनी बार लूप चलना चाहिए? 4 टाइम्स। वाई 4 टाइम्स? लेंथ। सो कैन आई राइट दैट? So I is my index. Index will start from 0. Index should be less than or equal to. Only is less than, right? Equal to करेंगे तो index is less than or equal to कितनी बार चलेगा लूप? array length कितना है? array length कितना है? 4। तो 0 1 2 3 4, 4 भी चलेगा इस केस में। तो ये प्रोग्राम चलेगा सही से? क्या एरर आएगा? सो इनिशियली मेरा इंडेक्स कितना है? 0। और इंडेक्स का रेंज क्या है? 0 1 2 3। 0 प्लेस पे ए है, 1 प्लेस पे बी, 2 पे सी, 3 पे डी। दैट्स इट। अब आपका लूप चल रहा है ज्यादा टाइम। अभी इंडेक्स का वैल्यू कितना है? 0 यहां पर। इंडेक्स बन गया 0 से 1 2 3 4। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। ट्रू। लूप के अंदर आया, लेकिन लूप के अंदर क्या गड़बड़ हुआ? आउट ऑफ बाउंड। तो एरे ऑफ 4 एरे ऑफ 4 इनवैलिड होगा। You get a array index out of bound exception. You get a array index out of bound exception. Simple. चलो, now Aditya, I want you to answer me this. ठीक है? ये array है। Now what is the output I'm expecting? Output I'm expecting you to print as 5 4 3 2 1 on the same line.
क्या यूज करोगे, कैसे, क्या लाइन लिखोगे, टेल मी। कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हैं। आपके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखो। 5 बार आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो। एरे ऑफ, क्या लिखो यहां पर, कौन सा इंडेक्स लिखूं? 4। उसके बाद 3, 2, 1, 0, 5 वैल्यूज हैं। 0 इंडेक्स पे क्या है? 1। फर्स्ट इंडेक्स पर 2। फाइन, ये अलग अलग लाइन पे जाएगा ये, राइट। अब आप 5 बार लिख रहे हो, अगर मेरे पास 10,000 वैल्यूज, आप ऐसे 10,000 टाइम लिखोगे? नो, राइट। तो क्या करोगे आप, बस इंडेक्स चेंज हो रहा है आपका। क्या चेंज हो रहा है? इंडेक्स। तो इंस्टेड ऑफ यू राइटिंग 5 टाइम्स, आई एम गोइंग टू राइट अ सिंपल लूप। आई एम गोइंग टू राइट अ लूप। तो उसमें क्या करना है, एक ही बार आपको ये चेंज करना है, राइट। अब ये यहां पर इंडेक्स होगा। अब इंडेक्स इनिशियली क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको प्रिंट क्या करना है? तो मेरा इंडेक्स कहां से स्टार्ट होना चाहिए? शुड बी -1 एंड इंडेक्स शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन। अब इंडेक्स का वैल्यू कितना है अभी? इंडेक्स का वैल्यू कितना है अभी? 4। एरे लेंथ कितना है? 5। 5 -1 4। तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट हुआ? 4। अब इंडेक्स बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, राइट। सो इंडेक्स शुड बी माइनस माइनस, ठीक है। इंडेक्स घटना चाहिए। हमने स्टार्ट किया 4, फिर कितना होना चाहिए? 3, 2, 1, 0। तो इंडेक्स क्या होना चाहिए? इंडेक्स का कंडीशन बताओ फिर। कंडीशन क्या लिखूं मैं? कब तक चलना चाहिए मेरा लूप? जब तक 0 से आगे नहीं जाता, 0 तक चलना चाहिए। जब तक मेरा इंडेक्स 0 नहीं है तब तक चलना चाहिए। तो यहाँ 0 तक चलना चाहिए, उसके आगे नहीं चलना चाहिए, जब तक मेरा इंडेक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन, अब लेस देन तो पहले ही 0 हो जाएगा। सो ग्रेटर देन मतलब अभी 4 है, 3, 2, 1, 0। अभी क्या करेगा, हर एक लाइन पर प्रिंट करेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, सो आई एम रिमूविंग दैट। अब यहां पर आउटपुट कैसा चाहिए मुझे? एक लाइन पर। पहले निकाल दो आप, यहां पर स्पेस दे दो। सिंपल। Now this array can be any big. Now I want you to find, पुष्कर, ये 100 है क्या इस array में? Whether this particular key 100 value is present in the given array? कैसे चेक किया? 5 वैल्यू इसे देख के समझ में आपने, लेकिन लेट्स से देयर आर 10,000 वैल्यूज, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तो आप चेक करोगे whether this 100 is equal to 1। अगर है तो रुक जाओ, नहीं है तो 100 is equal to 2, 3, 4, 5। जब तक नहीं मिलता तब तक चलोगे, जैसे मिल जाएगा तो रुक जाओगे आप। और लेट्स से 4 मिला,
तो क्या आगे कंटिन्यू करना है, सर्च करना है? नो, सो वी विल स्टॉप इमीडिएटली। तो हाउ डू यू डू दैट? हाँ, तो पहले तो आप क्या करो कि हमारे पास एलिमेंट नहीं है, we'll assume that element is not there, so flag is equal to false। एलिमेंट नहीं है, अगर मिलता है, अब पहले आपने बोल दिया मिल गया, तो फिर पहले आपने बोल दिया नहीं मिला, मतलब मिल गया, अब फिर बाद में वो फॉल्स कभी चेंज होगा? नहीं हुआ, तो पहले मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? फॉल्स है, नहीं मिल, अगर मिलता है ट्रू करेंगे। ठीक, नाउ हाउ डू यू राइट अ लूप फॉर I equal to 0, I should be less than array dot length I plus plus. If array of I is equal to key, flag is equal to true and break. Flag क्या है? Very good question. अगर flag true है, found, not found, चलो जिनको नहीं समझा उनके लिए बता दो। A flag लिया नहीं लिया, that is perfectly fine. अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है? की को किसके साथ कंपेयर करना है? पहले 1 2 3 4 5, ठीक, और किसके साथ कंपेयर करना है? 4। 4 इज इट इक्वल टू 1? नो। 4 इज इट इक्वल टू 2? नो। 4 इज इट इक्वल टू 3? नो। 4 इज इट इक्वल टू 4? यस। यहां पर तो नहीं है, आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे? वी विल स्टॉप, वी विल स्टॉप, इसलिए मैंने यहां पर लगाया ब्रेक। तो यहां पर क्या चेक कर रहे हैं हम? की इज इक्वल टू array of इंडेक्स, तो यहां पर 4 इज इक्वल टू 4 मिल गया, 4 इज इक्वल टू 4 मिल गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? स्टॉप, वी विल स्टॉप। अभी क्वेश्चन है फ्लैग क्या है। अब मुझे बाद में लास्ट में क्या बताना है उसे? मिला नहीं मिला, एलिमेंट मिला या नहीं मिला, अब उसको ये बताने के लिए हम फ्लैग यूज कर रहे हैं। तो पहले हमने एज्यूम क्या किया? नहीं मिला, ठीक, जैसे मिल गया तो हमने यहां पर क्या कर दिया? फ्लैग इक्वल टू ट्रू कर दिया, पहले फॉल्स था, अभी मिल गया मतलब मिल गया, दैट इज ट्रू। इनिशियली वी सेड दैट द एलिमेंट इज नॉट देयर, दैट इज अ assumption, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अब मिल गया तो ट्रू, जैसे हमने वो पैलिंड्रोम परफेक्ट नंबर के लिए भी किया था, प्राइम नंबर के लिए भी फ्लैग यूज किया था, तो सेम यहां पर भी है। मेक सेंस? लिनियर सर्च बहुत सिंपल है, दैट शुड नॉट बी अ डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अयान। So I have this particular array, इसमें मुझे क्या करना है? एरे एलिमेंट का सम, जो भी सारे एलिमेंट्स है एरे का उनका सम कैलकुलेट करना है। सो हाउ डू यू डू दैट?
सम इनिशियली विल एज्यूम दैट टू 0. सम में पहले ऐड 1 करेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, यही करोगे ना आप. तो आप सम इज इक्वल टू ऐसे ही कर सकते हो आप. दैट इज वन गदा मजदूरी वाला काम. बट अगर मेरे पास 10,000 एलिमेंट्स हैं, ये चलेगा क्या? नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? ये तो नहीं करना हमें. तो हमें हर बार क्या करना है, एक एक एलिमेंट लेना है और उसको किस में ऐड करना है, सम में. तो इसलिए मैं सम ले रहा हूं, सम इक्वल टू 0. ठीक. फिर क्या करेंगे, सम में एरे ऑफ 0 ऐड करेंगे, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 एंड सो ऑन. कब तक? दैट्स इट. फाइन. हम्म. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अभी? एन इक्वल टू एन 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 इंटू एन प्लस 1/2. वो कब के एन नंबर की सम के लिए ना. इसमें कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरी. आपके क्लास में सबसे ज्यादा 12th को किसने मार्क्स है? हु हैज हाईएस्ट मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड? किसको मार्क्स है सबसे ज्यादा? आदित्य, कितना मार्क्स है तुम्हारा 12th में? शर्मा मत. 60. 60. ओके. तुम्हारा? 80. होशियार है वैसे, हाँ. 82. 52. मेरे से होशियार है तुम तो. 62. 60. 70. 75. तुम्हारा? 70. ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ 61. चलो. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हु इज द टॉपर. हु इज द टॉपर एंड सेकेंड टॉपर. So how will you find out? कैसे कैसे फाइंड करोगे? फॉरगेट अबाउट दिस एग्जांपल. क्लास में फाइंड करा तो क्या करोगे? पुश कर दो. हाँ, एक एक दूसरे के कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा. सबके मार्क्स पता होना जरूरी है कि नहीं टॉपर फाइंड करने के लिए? या किसी का मार्क्स नहीं पता फिर भी पता कर सकते हो? सबका मार्क्स पता होना चाहिए. तो क्या करोगे आप? लेट्स सी, दीक्षा से स्टार्ट कर. दीक्षा वांट्स टू फाइंड आउट हु इज द टॉपर. तो दीक्षा क्या करेगी? यू विल कंपेयर योर मार्क्स विद लेट्स से आदित्य. पता चला कि तुम्हारा अभी भी ज्यादा है. अभी भी टॉपर कौन है? तुम ही हो. फिर उसके बाद नेक्स्ट किसके साथ कंपेयर किया? सलोनी के साथ. कितना मार्क्स है? 82. तो अभी नया टॉपर सलोनी. नाउ अभी तुम्हारा मार्क्स कंपेयर होगा या सलोनी का मार्क्स कंपेयर होगा आगे? तुम्हारा मार्क्स, अभी तुम्हारी जर्नी खत्म. अभी सलोनी का मार्क्स तुम्हारे साथ कंपेयर होगा. 82, 70. अभी भी टॉपर सलोनी. नेक्स्ट 62. अभी भी टॉपर सलोनी. 60, 61, 70. अभी भी सलोनी है. तो हमने क्या किया? इस तरीके में कंपेयर किया. यू आर गोइंग टू कंपेयर, यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस मार्क्स. दैट्स इट. तो आप इसके लिए एज्यूम भी कर सकते हो. अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाता है. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो सबसे पहले क्या करोगे आप? हाँ. सो मैक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैं कोई नेगेटिव वैल्यू पकड़ता हूं. लेट्स से -1, -1, -2, -3, -4, 5. एज्यूम कर देते हो ऐसे ही. नेगेटिव वैल्यू है बहुत बड़ी.
ठीक है, अब आपको करना क्या है, या आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर, बट अभी मैं क्या करूंगा, इस मैक्स को इसके साथ कंपेयर करूंगा। अब मेरा मैक्स कौन सा बनेगा भी, मैक्स विल बी इक्वल टू 60। अब 60 और 80, अब मेरा मैक्स, नया मैक्स बन के मैक्स बन गया 80, फिर अभी 82, तो नया मैक्स बना 82, 52 नो चेंज, 62 नो चेंज, 61 नो चेंज, 75 नो चेंज, 70 नो चेंज। ठीक, ये मैक्स के लिए वन गो में चल जाएगा, बट एट द सेम टाइम मुझे सेकंड मैक्स भी पता करना है, सेकंड टॉपर भी पता करना है, तो मैं भी सेकंड टॉपर को क्या करता हूं, सेकंड, इसको भी कुछ नेगेटिव वैल्यू लिख लेता हूं। अब मुझे बताओ, जब जब मैक्स चेंज होगा, तो जो मैक्स की पहली वैल्यू थी वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, सेकंड मैक्स। तो जब जब अभी लेट से 60 से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, मैक्स चेंज हुआ क्या मेरा, चेंज हो गया, मैक्स इज नाउ 60, सेकंड मैक्स ये बनेगा, सेकंड मैक्स की वैल्यू -1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब आगे 80 पे, मैक्स चेंज हो गया 80, बट बिफोर यू चेंज मैक्स टू 80, मेरा सेकंड मैक्स पहले अपडेट करो, तो 60 बन गया, और मैक्स 80, 82, पहले सेकंड मैक्स अपडेट करो, क्योंकि वो वैल्यू चली जाएगी अदरवाइज, 80 और 82, 52 नो चेंज, 62 नो चेंज, 61 नो चेंज, 75 70, इन सब के केस में मेरा मैक्स चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करी होगी, मेरा एक्चुअल आंसर सेकंड मैक्स क्या होना चाहिए, 75, सॉरी 80 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ बराबर है आंसर मेरा अभी भी 80 82। नाउ देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस इज 81, सेकंड मैक्स क्या होना चाहिए, है क्या, तो मेरा मैक्स नहीं चेंज हुआ, मेरा मैक्स चेंज हुआ क्या, नहीं, बट मेरा सेकंड मैक्स चेंज होना चाहिए। तो ये सिचुएशन क्या है, 81 इज लेस देन 81 is less than 82, but 81 is greater than second max, तब जाके आप चेंज करोगे। ये क्या कंडीशन है, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन लेस देन मैक्स, एंड एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स, एंड तब जाके आपका सेकेंड मैक्स चेंज होगा टू 81, समझे। एनी क्वेश्चन, तो मैक्स और सेकेंड मैक्स बोल सकता हूं इसको मैं, सो व्हाट आई विल एज्यूम, एंड मैक्स इज इक्वल टू सबसे छोटी वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप, चल जाएगा, बट देयर आर सम इश्यूज एज केसेस, अगर 0 से लिखो देयर इज सम प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम यू विल टेल मी टुमारो। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, देयर आर सम एज केसेस फेल, इफ आई स्टार्ट विद 0 देयर आर सम एज केसेस विच विल फेल, तो कल मुझे बताओगे कौन से केस में फेल होता है। 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आई एम टेलिंग यू देयर आर सम एज केसेस विच विल फेल, इसलिए मैं यहां पर श्योर शॉट होने के लिए इससे स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, क्या करना है मुझे, चेक करना है इसको और इसको, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई, हो गया ये,
कंटिन्यूसली रहेगा ये। अब 80 और मैक्स, 82 मैक्स, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब जब मेरा मैक्स चेंज होगा तब तब मेरा सेकेंड मैक्स इक्वल टू मैक्स। और एक और कंडीशन है, अब यहां पर मैंने आपको बताया था, लेट से मैं 81 करता हूं यहां पर, तो मेरा आंसर गलत होगा इस केस में। मैक्स इक्वल टू मैक्स, तो मेरा मैक्स कितना आना चाहिए? 82, वो करेक्ट है। सेकेंड मैक्स कितना आना चाहिए? 81, बट वो आएगा कितना? 80। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा। क्या? एरिया ऑफ आई इज, एरिया ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स एंड क्या क्या इधर ना, हाँ, लेकिन पहला इफ इधर तो आना चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम में नहीं है वो। अब चेंज होगा, समझे? ये नहीं समझा क्या? ये लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए इसको हटा देता हूं मैं। सो एरिया ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स, सेकेंड मैक्स इक्वल टू, समझे? तो पहले ही केस में मुझे बताओ, जब एरिया ऑफ आई इज ग्रेटर देन सेकेंड मैक्स, तो आपका सेकेंड मैक्स मैक्स के बाद ही रहेगा। सो दैट्स रीजन इट इज देयर। कहां पर? इधर ना, कहां कर सकते हो? क्वेश्चंस? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? Now this is just a start. There are a lot of questions are there. So what questions we have seen so far? कल इसमें और क्वेश्चंस डेप्थ ऐड करना है, बट बिफोर दैट आई वांट यू टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, बिकॉज हम एरे मैनिपुलेट करने वाले, वी आर गोइंग टू शिफ्ट द एरे एलिमेंट्स, राइट? तो इसके लिए आज गो थ्रू करो क्वेश्चंस। सो एरे ट्रैवल्सर इन रिवर्स ऑर्डर देखा है हमने वो, देन sum of array elements, then linear search, find max and second max। तो वैसे ही आप इसी को चेंज करके फाइंड मीन एंड सेकेंड मीन कर सकते हो। अगर आपको ये समझा होगा तो यू कैन इजीली डू दैट। ठीक, हाँ बस प्रिंट कर रहे हैं। तो अरे रिवर्स, एक्चुअल में रिवर्स कैसे करना है, दैट इज, हाँ, 2 पॉइंटर वाला वो। सो यू कैन डू दैट असाइनमेंट्स। चलिए इसको जितना होगा है उतना करो, दैट्स फाइन। अगर अच्छा कुछ क्वेश्चंस आता है यू कैन डू दैट। तो कुछ क्वेश्चंस है, ये जो मैंने किया वो तो करो ही, प्लस एरे कॉपी, एरे कॉपी ट्राई करो। कॉपिंग
one array to another array. That is fine. I think that is simple है. Array copy कर पाओगे? क्या करना है इसमें? You want to create a new array. ठीक है. दूसरा है कि print even elements only. ये ट्राई कर सकते हो. ठीक. कुछ क्वेश्चंस है, इतना बेसिक आज के लिए इतना सफिशिएंट है. इसी में टाइम जाएगा आपका. अगर टाइम मिलता है तो और कुछ क्वेश्चंस कर लेना. बट टुमारो विल बी सीइंग मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. ठीक है.